today you've graced the program of in the celebration of Silver Jubilee of GWSL. Any message you'd like to give to the Galo society? So the message on the occasion of Silver Jubilee of the Galo Welfare Society, I've said in my speech also, it's a progressive society, and when you become a big brother, it's your duty to take everyone along, and that's what they've been doing, and I believe that they will carry on this endeavor for times to come, and we're very thankful for making me part of this beautiful event of the Silver Jubilee celebration of Galo Welfare Society. You also said in your speech, Alo has a potential for tourism since it's near your district, also Mechuka. So, what are the pointers that Alo can improve in the tourism aspects? If you can The people has to come forward, because you cannot just always look at the government, what the government is going to do for you, because tourism is such an industry where you have to put in an effort to make the tourism grow. And the best part about Alo is it's on the way to Mechuka, and Mechuka is definitely going to become a hotspot of the tourism. So we see that the tourist has to come, go via Alo, and like I said, if they're spending $10 in Mechuka, they will have to spend $20, because while going and while returning, they have to go through Alo. So it's a beautiful opportunity for the people of Alo and West Siang to encash on this, the potential which is going to come up very soon. So I feel that people should come forward and try to and prepare themselves for tourism in coming days, because it's going to be one of the biggest industry, and it's going to be engine of growth for the state, because tourism is one industry which is non-polluting and which has multifaceted benefits, because right from the employment for each and everyone, direct and indirect, and right from the farmers, from the taxi owners, from the restaurant owners, from the shop owner, everyone gets a bit of the piece of the tourism. So we need to come together and try to encash on the opportunity which they're going to get. So in future, what changes can we see in West Siang in aspects of education, since you are also the tourism minister, education minister? See, education, like I said, because the government is very aggressively, doing some reformation in the education sector. So any movement, when people doesn't come forward and support, it will never see the success. So I always appeal everyone wherever I go that the people has to participate. So like I always say that we need to engage each and every section of the society when it comes to education. And I've seen there's a very, very positive inputs from a lot of people. They're cutting across the society and districts and the tribe. It's very encouraging, and I see this kind of support will definitely change the landscape of the education in Arunachal Pradesh. So we're very hopeful. Thank you, sir. Okay, sir. ये सर देखा गया कि तातो में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है, तो उसमें देखा गया कि हम भी उसमें ग्राउंड में विजिट करके देखा, क्वालिटी में भी बहुत कॉम्प्रोमाइज किया गया, और वहाँ का जो सामान है ऐसे उधर बिखरा हुआ है। तो सर क्या कहना चाहिए? सामान क्या हो गया? उधर जो सामान था सीमेंट भी पूरा पत्थर बन के रह गया, और जितना सामान था उस पहाड़ में पूरा टूटा फूटा हो। उसका कारण आपको पता है? और सर वहाँ का मैं मान रहा हूँ, कारण पता है क्यों? नहीं मिलता तो ना सर। नहीं, कारण आपको पता है क्यों हुआ? आप रिसर्च किया क्या उसमें क्यों ऐसा प्रॉब्लम हुआ? नहीं सर, आप थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले तो साइट सिलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। दैट्स व्हाई अभी वो डंपिंग जोन में आ गया हाईवे का, तो उसको देयर इज नो पॉइंट गोइंग अहेड विद दिस प्रोजेक्ट। सो वी आर in the process of looking for a new location जहाँ पे हम अच्छा से करेंगे। And when it comes to the construction quality, जो local contractors को भी एक moral responsibility लेके करना पड़ेगा। As a minister and local MLA, हर construction site में जाके खरा की quality तो monitor नहीं कर सकता है। The sense of ownership has to come from the locals only, तभी जाके आगे बढ़ेगा। हर चीज नेता पे, लीडर पे उंगली दिखाने से नहीं होता है। It has to be a collective effort. Everyone should contribute to the development of the society and the place. तो मेरा इसी सिर्फ हमारा डिस्ट्रिक्ट का नहीं, फॉर एवरीवन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, सेंस ऑफ ओनरशिप एंड क्वालिटी मेंटेन करना लोकल्स का काम है। द कॉन्ट्रैक्टर आर फ्रॉम आवर ओन प्लेस ओनली, कोई बाहर से आके काम नहीं कर रहा है। तो एवरीवन हैज टू थिंक दैट जो बन रहा है हमारे लोगों के लिए बन रहा है, तो इसलिए क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड सी टू इट दैट कि क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है। लेकिन आलतू फालतू का ऐसे
वो क्या कंप्लेन बाजी करके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टॉल नहीं करना चाहिए। मेरा यही मैसेज होगा यहाँ से। थैंक यू। लिकापल्ली में सर कुछ दिन पहले गालो लैंग्वेज का प्रोग्राम हुआ था सर, जो वहाँ जो है मार्क विलियम पोस्ट जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं सर, तो वो तकरीबन 5 सालों से जो है वहाँ एक सिली करके एक गाँव है, वहाँ पर जो वो बैठे और 5 साल बैठकर जो है उन्होंने जो है वहाँ पर बैठकर गालो की जो भाषा है उन्होंने सीखा है। तो आप जानते हैं कि वो दूसरे कंट्री से ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो सर इसमें गालो समाज के लिए क्या फायदा हो सकता है अगर वो अपनी जगह पर अगर ये आपके भाषा को की भाषा को लेकर जाए? ये आपको सोचना चाहिए कि विदेश से आके आपका लैंग्वेज को डेवलप करने का कोशिश कर रहा है, तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सबसे बड़ा मैसेज है। मे बी ही केम इन फॉर हिज ओन रिसर्च इंटरेस्ट, बट देयर इज अ हिडन मैसेज फॉर द गालो पीपल, नॉट ओनली फॉर द गालो पीपल, एनी सोसाइटी। हमको आज ये दुख का बात है कि बाहर के लोग आके हमारे बारे में रिसर्च कर रहे हैं। इट शुड बी अस हू शुड बी टेलिंग द वर्ल्ड व्हाट वी आर एंड व्हाट वी हैव, what is the rich culture of our society or our community। बाहर का लोग हमारा रिसर्च करके बुक लिख रहा है, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं कि हमारा कितना कल्चरल पोटेंशियल है, कितना हमारा डीप रूटेड कल्चर है, कितना वाइब्रेंट कल्चर है। इसको अब ये नौबत आ रहा है कि बाहर के लोग हमको बताना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सटल मैसेज है जो मार्क पोस्ट का जो आपने बात बोला, एक ऑस्ट्रेलियन आदमी आके आपका लारे एरिया में बैठ के पूरा लैंग्वेज को रिसर्च करके पूरा ग्रामर के साथ कर रहा है। दिस हैज टू बी डन बाय आवर ओन पीपल एंड वी tell rest of the world that we have got such a beautiful and vibrant culture and very rich culture। सर इसमें जो सर गालो लैंग्वेज के ऊपर जो डिक्शनरी बनाने वाले कुछ 2-3 लोग हैं गालो समाज से सर, तो उस दिन हमने जब प्रोग्राम लिया सर, तो उनका नाम जो सर मेंशन नहीं किया गया। तो इसमें कहना है कि जो है उनका जो लैंग्वेज जो है डिक्शनरी में वो कंप्यूटर पे डिटेक्ट नहीं होता, तो सर इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सब तो टेक्नोलॉजी का बात है। जब ये बड़ा सोसाइटी होगा, जब इनका कंप्यूटर में डिटेक्ट नहीं करना, वो आप डेवलप करना पड़ेगा ना सॉफ्टवेयर। ऐसे तो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, इट्स अ न्यू थिंग। सो कंप्यूटर में उसको तो हमको इनपुट देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में, तभी जाके होगा। ऐसे गालो सोसाइटी कोई फ्रेंच या स्पेनिश लैंग्वेज तो नहीं है कि ऑलरेडी मतलब एज ओल्ड है जिसमें हमारा पूरा सिस्टम में फीडेड, ऐसा नहीं है। नया है तो उसमें नया से उसका अपना होगा, टेक्नोलॉजी का बात है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सर लोगों का ऐसा कुछ शिकायत है कि जिन्होंने डिक्शनरी बनाए कम से कम जो है उनका जो नाम जो है मेंशन करना चाहिए सर, तो उनका वो अभी जैसे इन लोगों का अपना इशू है, मुझे उसका बारे पता नहीं है, सो आई नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट।